Namaste and welcome back to lecture number 2 of standard 10 chemistry, and chapter is acid, base and salt. In last class we have studied about the in last class, as you know, we have studied about the definitions of acid, and our last point is any substance which is electron deficient is known as acid. Okay, एक और एग्जांपल समझिए. नेक्स्ट पॉइंट था, आप नोट किए होंगे, उसके बाद वहां से नोट करें. समझिए, ये देख लो, पहले आप समझो फिर लिखना. ये हाइड्रोजन है, ठीक है. दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन. नोट डाउन. एटॉमिक नंबर दिस इज 1 एंड दिस इज मास नंबर. इस साइड में लिखा होता है, बेटर टू राइट दिस साइड. दिस इज मास नंबर and this is atomic number. As you know, number of proton is equal to atomic number. So अब इसमें हम लोग को, आप देख लो, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होता है. तो आप पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. याद है? डू यू नो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स? इज इट क्लियर? सी, दिस नंबर इंडिकेट्स प्रोटॉन. हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 1. Number of proton is equal to number of electron for neutral atom. So this is neutral atom, so number of proton is equal to number of electron, and for the case of neutron its formula is mass number minus atomic number. Atomic number means number of proton, so m minus z. Okay, m minus z. Then mass number is 1 and atomic number is also 1, so 1 minus 1 is equal to 0. Means this is the atom which have no neutron. Is that clear? Now see, हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ 1 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस. जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना प्लस आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं उतना माइनस. तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +1 आ गया. अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 था, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं. सिर्फ क्या बच गया, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो प्रोटॉन. तो इसको हम लोग दूसरे नाम से प्रोटॉन भी बोलते हैं. H प्लस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? प्रोटॉन. क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 था, इट इज यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम H, सो इट बिकम प्रोटॉन. इज इट क्लियर? नाउ सी, what is the definition? Any atom, any substance, is it clear, which produce proton. Getting my point? Any substance which produce proton in water, is it clear, it is known as acid. Is it clear? Write down definition. Next point, any substance which produce proton is also known as what? Acid. समझे बात को? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में प्रोटॉन देता है, कहाँ पे देता है? वाटर में, इन एक्वस मीडियम, है ना. बेटर टू राइट इन एक्वस मीडियम. इन एक्वस मीडियम. इज इट क्लियर? वाटर में आपको ये क्या देता है? प्रोटॉन. तो आप उसको क्या बोलते हैं? एसिड. इज इट क्लियर? These all are the definitions or important points for acid. Okay. Now next topic is classification of acid. Acid को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. Is it clear? Acids are classified into 2 category. First is mineral acid and second is organic acid. Is it clear? First is mineral acid and second is organic acid. So first write down and then I will explain. Okay, before the classification of acid, first note down the example of acid. Okay, what are the example? See, this is HCl, HNO3, HCOOH, CH3COOH, H2SO4, H2SO3,
HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HBr, HI, etc. These are the example of acid. Write down first. These are the example of acid. These are the example of acid. This is HCl, HNO3, HCOOH, CH3COOH, H2SO4, H2SO3, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HBr or HI. Okay, write down first. Then I will explain the classification of acid. Okay, write down first. Written? Good. Classification of acid. Okay, acids are classified into, as I have told you, it is classified into two categories. Is it clear? So see, this is acid. Acid is classified into two categories. First is मिनरल एसिड, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड. एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड. राइट ऑन फर्स्ट. फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक एसिड. रिटन? राइट ऑन फर्स्ट. समझिए, कोई भी ऐसा एसिड, आई बात समझे, कोई भी ऐसा एसिड जो हम लोग को मिनरल से ऑब्टेंड होता है, आई बात समझ में, एसिड विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स, उसका रिएक्शंस करा के एसिड लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा करके, कैसे भी. एसिड विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स इज नोन एज मिनरल एसिड. इज इट क्लियर? एंड द एसिड विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम plant and animals, or you can say hydrolysis of fat, is known as organic acid. Is it clear? I repeat it. Any acid which is obtained from animal and plants is known as organic acid. Is it clear? Write down definition. First, mineral acid. Mineral acid. The acid which is obtained from minerals is called as mineral acid. Example: HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, H3PO4, H3PO3. These are the example of mineral acid or inorganic acid. Written? Write down first. These are the example of mineral acid and inorganic acid. इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें कार्बन नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 100%. कुछ ऐसे हैं जो मिनरल एसिड हैं और उसमें कार्बन भी होता है, जैसे कार्बोनिक एसिड. इज इट क्लियर? तो जैसे CO2, इसको भी हम लोग एसिडिक नेचर का बोलते हैं. तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. क्लियर है? ओके. सेकेंड इज ऑर्गेनिक एसिड. राइट डाउन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन ऑर्गेनिक एसिड. रिटन? ओके. Organic acid. What it mean? The acid which are obtained from plant and animals. Write down. The acid which is obtained from plant and animal, or hydrolysis of fat. Is it clear? Example: CH3COOH. ये देखो, इसको बोलते हैं, दिस इज एसिटिक एसिड. फर्स्ट. सेकेंड, दिस इज HCOOH.
फॉर्मिक एसिड। देखिए आपको समझा देते हैं। ओके, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिटिक एसिड। ये एसीटम है, एसीटम नाम के प्लांट से मिला था। एसिटिक एसिड कहाँ से मिला था? एसीटम नाम के प्लांट से। क्लियर है? ओके, आप ये जो देख रहे हैं फॉर्मिक, फॉर्मिक ग्रीक में वर्ड है, इसको वहाँ पे फॉर्मिक का मतलब होता है चीटी। क्लियर है? फॉर्मिका से डिराइव हुआ है। फॉर्मिक जो वर्ड आया है कहाँ से? फॉर्मिका, और फॉर्मिका का मतलब होता है चीटी, मतलब ये एंड में पाया जाता है। तो भी आपको बता रहा था एनिमल और प्लांट से मिलता है, उसको आप बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है? ओके, आपको अगले क्लास में ट्रिक बताएंगे एसिड याद रखने का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Completed.